after doing a lot of things by all these three master trainers, actually I am in confusion. What should I do? Finally, the time comes. Yes. What should I do so that you can feel something different? Deepak sir, Because- give them a toffee break so that by sitting they can eat the toffee only. Okay. So it's Nothing else. 2 minute break, 2 minutes toffee break. Toffee Whatever the break toffee is you are not having on your easy. table, you can take it. If you are interested in doing that. Take the toffee break and talk to one another. Get refreshed and be alive. My first give me. I want once. Where is my phone? You eat all the toffee. Done? Come, okay, I will show you your phone. Okay, attention please. Attention. You have your writing pad with you. Is it there? Is it there? You have a writing pad with you. See it? Just tear one page of this writing pad. Tear one page of this writing pad. What the pad you are having, clear it from this. As you wish. As you wish. I have no any objection. I have no any objection. If you want to clear that written page, you can. Have you done? Again tear it half. Again tear it half. You have to use only half of the paper. Tear it. Do it fast. It's a 3-minute activity only. Done? Now you all just hold your page like this. The torn page you hold like this and show it to me. Show it to me. All are ready with the paper? Now your puzzle is to tear the paper in such a way so that I can pass through. it. Tear the paper in such a way you can tear like this, you can tear like this, or whatsoever. It should be a chain through which I can I pass. can pass. I. All the master one by one I you can pass. do it. Everyone can pass. Activity only. No. Not I. It's the whole sum. I'm talking about the whole body. It's me. Yes. I will pass through this. Tear the page in such a way. Sochi. लगता है समय में डॉक्टर पास होता दीपक सर को लिलीपुट पे भेजना पड़ेगा. If you think कि सुनने से मैं निकल जाऊंगा then ये आपका अंडर एस्टिमेशन कुछ ज्यादा ही होगा. अंडर एस्टिमेशन Is there anybody those who can do You this? can pass to it or not? No. पार हो जाएंगे सर ना कहीं से नहीं. No, not EYE. It's me, Deepak sir. No, let them think. I have to pass No, through this. just they will let them. What? According to them. Hmm. What do you think I is? No. All are doing. Okay. फटा हुआ पेज तो सर Means no one got the proper Take the solution. photo of that one. Take the photo of Sohan. Looking very good. Yes. Oh, wow. Great. I can pass. I can pass. Okay, so nobody got the solution. No, let them try, sir. Let them try, sir. बैठे हुए वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है. सर लोग हार मारने का पता नहीं आया. कैसे भी फाड़िए जिसमें से मैं निकल जाऊँ. Please, sir. Not possible. Sir, nothing is impossible. सर भी नहीं पा रहे हैं. Do this. सर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. सर को पूछिए. Sir, पता है पुष्पा we are very close to it. आ जाइए इसको से पकड़ते हैं पर हो जाइए. नहीं Okay. That was not right. Make a single hole through which I can pass. Deepak sir can pass. But we say yes. Through a single hole, Deepak sir can pass. make
the single hole page into one. No, nobody has done it. इसका नहीं हुआ? Okay. Now see the solution I am doing. Once again the rest paper which आधा पेज और आपने फाड़ कर रखा है. Hold it in your hand. Hold it in your hand. नहीं होगा मैडम, आपको जोड़ना पड़ेगा वो. मैंने को देख लिया, वो इधर से इधर जोड़ना ही पड़ेगा फाइनली, तभी मैं जा पाऊंगा उसमें से. आपने अपने पेपर को रखा है हाथ में. Hold it in this way. Again hold it in this way. Done? Done? Okay. Now see the solution. See the solution. Do it like that. Do it like this. What I am doing. See. इसको फिर ऐसे लगेगा. आपको complete whole person के पास See this. Do this. कंसंट्रेशन से करिए, थोड़ा एंजॉय करके, कि मेरे लिए कम से कम हम लोग मास्टर ट्रेनर्स के लिए कागज की सही एक माला बन जाए. बाद में फूल हमारे पास है, हम लोग उसमें चिपका लेंगे. नो प्रॉब्लम. एक दीपक सर है ये वाले जो कि अपने क्लास में डर्टी स्टूडेंट है. Yes. माला is ready. माला is ready. वो माला बन जाएगा. अभी आप देखिए तो देखिए माला. यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Is there any problem? Any confusion? No. Now the trick is how to convert it into a garland. See, यहाँ पर आप जोड़ देख पा रहे हैं ये, ठीक है? Here in such a way. One is ready. Second one is ready. See, One more. I am not adding anything. Third one is ready. And now Deepak sir will pass through it. See, see this. इससे तो मैं पास हो ही जाऊंगा, देख लो. शायद मैं निकल जाऊं इसमें से. So, Deepak sir will pass through it. Okay, so now coming back to the topic. It was the entertainment part only. There is no relation with the science. It was a trick only how to tear the page in such a way. So with a single tear only, we can make it in a beautiful way, or we can make any decorative item with the help of simply a paper. So as per the schedule you are having, I have a session of joyful science. See what is in the joyful science, what we have to do, how can we make our teaching joyful. Because a child learns what he wants to learn, how he wants to learn, and when he wants to learn. Otherwise you cannot make him or her learn. A child learns how he or she wants to learn, what he or she wants to learn, and when he or she wants to learn. Otherwise you cannot make anything in your class, or you cannot make the learning possible in your class if you will do the things by force. So make your class joyful. What are the different ways? Many things are shown by Vijit sir. Richa ma'am has already delivered her lecture. Priyanka ma'am has also done. I also simply I will add some more things through which you can make your class joyful. Because we are the teachers of primary and middle level,
and it is very much essential that the children must develop the concept in his or her brain. Otherwise, एक्चुअली हम लोग अगर प्राइमरी और मिडिल वाले टीचर बोले तो हम ही लोग बच्चों को नर्चर करके सेकेंडरी वालों को हैंडओवर कर देते हैं कि नाउ यू डिजाइन, रीप योर, हार्वेस्ट द क्रॉप। सब कुछ प्रोवाइड किया हम लोगों ने, फसल ले गए बोल, क्योंकि शुरू किया हम लोगों ने, उसको साइंटिफिक कंसेप्ट दिया हम लोगों ने, लिविंग नॉन लिविंग से लेकर फोटोसिंथेसिस से लेकर और सारी चीजें, और बाद में क्लास 10 में जाकर बच्चे ने बोल दिया, क्रेडिट किया टू द क्लास 10 टीचर्स। But then also, as we are the teacher, we are the facilitator, we are nurturing the child as our own child. In the same way, if we make our class joyful, then only we will be able to transmit the things what we people have. Here the teachers are sitting in this room and all are having a lot of ideas. Only the need is to transmit the ideas what you have to your children, to your class children. The need is that only. Many times we talk about NEP. I think, according to my opinion, nowadays the need is to make a good human being first. Instead of educated, we need to make a good human being first. If the child will be a good human being, there is no need to do anything, and we do not have to do that much labor to design his or her future. If he will be or she will be a good human being, if he or she will have all the good moral values, what we people feel in our class that it is degrading day by day. आज हम क्लास में जाते हैं, हम बच्चों से वो रेस्पेक्ट नहीं पाते जो हम लोगों ने अपने टीचर्स को दिया। सिंपली हम लोग क्या कह देते हैं कि आपने नहीं किया तो आपको भी नहीं मिला, लेकिन हमने तो किया है, हमारा टाइम ही वैसा था कि हमको करना ही था, क्योंकि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स टीचर्स की कंप्लेन सुनते थे, हमारी कंप्लेन नहीं। हमने स्कूल में क्या किया सुनाने पर और ऊपर से हम लोगों को घर पे भी पिटाई लगती थी कि तुम ही गलत हो। आज का माहौल अलग है। We were compelled to do. Today the environment is different. आप सिर्फ बच्चों को तभी पढ़ा सकते हैं when you will make your class interesting. Otherwise, nobody will listen, and we are bound not to perform any such thing in the class or any such thing to the child. Or otherwise, what he or she will do, in what way he or she will reply you or give the response to you, you are not in such case that you cannot imagine what he or she will do. Even आपने एक छोटा सा थप्पड़ लगाया, वो बच्चा घर जाकर रात भर सोएगा ही नहीं। आप उसके पेरेंट को जवाब देते रहिए, फोन पे यही कहा जाएगा कि मैडम आपने मारा, मेरा बच्चा रात भर सोया नहीं। आपने अगर उसका कान पकड़ लिया तो बस उसके कान में इस तरह का दर्द हो गया कि वो जिंदगी भर के लिए बहरा हो गया। अब आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ी बात, और दूसरी, नहीं सुन रहे तो फिर हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद से आप फिर कभी किसी बच्चे का कान छूने के लिए 200 बार सोचेंगे कि फिर से ये बहरा हो गया तो होता है ना ऐसा। सो आपके पास अब कोई तरीका नहीं है कि आप अपने क्लास में 40 मिनट कैसे टिकिए। वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग कि आप क्लास में टिकेंगे कैसे 40 मिनट, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका कोई नॉलेज कम नहीं आएगा अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो। So, with the knowledge, with the content, with the subject content, there is one more thing needed, the trick, how to make them engage in the class so that the environment should be joyful and they will be ready to learn. मैं हर एक बार के सेशन में इस बात पर बड़ा जोर देता हूँ, और ऐसा होता भी है कि आपके क्लास के लिए स्टूडेंट वेट करे कि मैम इज कमिंग और सर इज कमिंग। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े, बस रूटीन में अरेंजमेंट लगे तो स्टूडेंट खुश हो जाए। अरेंजमेंट आपके नाम से हो तो स्टूडेंट और खुश हो जाए। नहीं अरेंजमेंट लगे तो कोई बच्चा आपको अप्रोच करे कि मैम प्लीज कम टू आवर क्लास, कभी मेरे क्लास में भी अरेंजमेंट लेकर आ जाइए। दैट इज द ग्रेट सक्सेस, वही आपका सक्सेस है अगर बच्चों ने आपकी डिमांड कर दी तो। अदरवाइज अपने लिए तो दुनिया में सब अच्छा ही, आज तक कोई बुरा हुआ ही नहीं। ओके, सो दैट इज व्हाट माय टॉपिक इज, जॉयफुल साइंस।
Here is a quote. The teacher should be like the conductor in the orchestra, not the trainer in the circus. छड़ी के जोर पर बच्चों को पढ़ाना या एक ट्रेनिंग देना कि बस पढ़ो पढ़ो रटो ये याद करके आओ ये करके सुनाओ. We are not for that. We are only the conductor which can start the flow of current, which can spark a light in their brain so that they are ready to learn the thing, they are ready to accept the concept. Okay? Albert Einstein, very famous scientist. His statement is, I never teach my pupils. I only provide the conditions in which they can learn. As we are telling ourselves as a facilitator, the same thing. We only provide the facility to the student or the environment inside the classroom so that the learning can be made possible. This is I have done already. Now see, you have the writing page or you have A4 paper also. Here some of the methods are there: hands-on learning, brainstorming, cooperative learning, role play, discussion, demonstration, field trips, as Richaman said about field trips a lot, storytelling, audio and video. Rank these methods on a scale of 1 to 10. What you think that it should be on rank 1, 2, 3, 4, 5, 10. Rank these methods. It's a 2-minute activity only. So think very quick and rank all these methods. Quickly write down. Which one will be the 1, 2, 3, respectively up to 10. It is a 2-minute activity only, so don't take very much time because we have a very limited time for that. I am repeating it if you are not able to see. Hands-on learning, brainstorming, cooperative learning, role play, discussion, demonstration, field trips, storytelling, audio, video. And because of lack of time, I will take the presentation of only 2-3 participants. Means by standing at your own place only, you will tell why you thought that this should be on rank 1. Done? Once again I am repeating: hands-on learning, brainstorming, cooperative learning, role play, discussion, demonstration, field trips, storytelling, audio, video. No problem. That is what I am telling. I am not telling that this should be only according to my what I had done or what I have placed on rank 1. आपके विचार से भी वही होगा. I am not telling that. I am taking your view कि आप किसको नंबर 1 पर रख रहे हैं और रख रहे हैं तो क्यों. Done? सर, सुबोध सर, कौन से मेथड को आपने रैंक 1 पर रखा है? Demonstration. Can you tell sir why? Please listen to him. Why it should be on rank 1? Yes, sir. It is a method which students take participate very actively, and they become very curious about that what does the perform. Okay sir, thank you. Leela ma'am. Brainstorming. Why ma'am? Share your idea please. Why you think that brainstorming should be on rank 1?
Because students get ready for doing discussion on any topic, whatever they are getting. Because brainstorming is a technique to make them ready. Okay, very good. Reena ma'am. Okay, ma'am, you, which idea, which method you have put on one? Demonstration. Why? Okay, sit down. Means you have placed demonstration on rank 1. Okay. Video. Why? Visual conception remains longer in their brain. Okay, due to lack of time, sorry for that. Due to lack of time, I am not in the position to take the views of all the participants. But if you have placed any of these methods on rank 1, it depends upon you. What do you think about that particular method? If you are expert in using any of this, that you can put on rank 1. My point is that if I am expert in demonstrating the things, then according to me, demonstration should be number 1. Because I am having a very large or a lot of ideas about the process of demonstration. What is to be done before demonstration? What should be done during the demonstration? If I am having all these ideas, then I can put it on rank 1. Suppose if anybody, as Indu ma'am said that, according to Indu ma'am, video is on rank 1 because the visual conception remains longer in the brain of the student. So it depends upon you, but you should be very much frank that what idea, what method you are going to use, you should have mastery on that. That is what the topic. Then after, for any method, if you are going to use any of this method, we need to enhance creativity, reading, viewing, speaking, listening, sequencing. Actually, LSRW, reading, listening, speaking, reading, writing, these are the skills of literature, language and literature. But here also, as we are the teacher of primary and middle, so we also have to be focused on creativity, reading, viewing, speaking, listening, and then sequencing. Sequencing means whatever the things we are giving to the students, they should be able to series the things, they should be able to sequence the things so that they can get the proper concept of the thing. आपने कोई डेमो दिया क्लास में और बच्चे को ये आइडिया ही नहीं हुआ कि मैडम ने दिखाया किसके बाद क्या चीज था, सर ने दिखाया किसके बाद क्या चीज था, and suppose he or she is unable to get the real sequence, real series, तो उसको वो कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ. So he or she should be able to do the sequence also. See, now the activity time. Activity time, एक सर पता नहीं कौन किस स्कूल से आते थे, I miss him very much. जब भी मैं वर्कशॉप में आता हूँ तो एक सर आते थे, जैसे ही मैं आता था तो आ गए एक्टिविटी मास्टर. मुझे आज तक याद है वो एक्टिविटी मास्टर. तो ये सर जिस तरीके से उन सर का स्टेटमेंट मुझे याद है एक्टिविटी मास्टर, हम लोगों को भी अगर बच्चे याद रहे, बच्चों को हम लोग याद रहे, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सक्सेस है. बस हम क्लास में घुसे और हमारी छवि तो बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी बनी हुई है कि सर कराने क्या वाले हैं. आप नहीं भी पढ़ाने वाले तो भी उसके दिमाग में है कि सर आ रहे हैं तो बैठने तो देंगे नहीं, सर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ही. अभी हम लोगों के स्कूल में ट्रिप डिजाइन हुआ था, तो मुझे 9वीं क्लास की एक लड़की ने बोला कि सर आप तो वहाँ भी पढ़ाएंगे. हम बोले डेफिनेटली पढ़ाएंगे. तो सर सोच लीजिए कौन सी जगह पे ले जाएंगे जहाँ आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप बाग बगीचे में तो कुछ पढ़ा नहीं सकते. मैंने कहा बहुत चीजें पढ़ाने को, हम तुमको पत्ते तोड़ तोड़ कर दिखाएंगे. सी दिस इज द सिंपल लीफ, दिस इज कंपाउंड लीफ, ये वेनेशन, ये वो बहुत सारी चीजें हैं. पेड़ उखाड़ कर तुमको दिखा देंगे, देखो ये जड़ है, ऐसा है, फाइब्रस रूट है. तो फिर उसको लगा कि सर वहाँ भी पढ़ा लेंगे आप, तो सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट चलेंगे हम लोग, जहाँ जाओगे हर जगह पढ़ा देंगे. हम लोग यहीं इसीलिए पढ़ाने के लिए. So what should be taken in the mind while demonstrating anything? See, activities सिर्फ हम लोग कराने चले जाए क्लास में, और आपने देखा होगा कि जैसे ही इवेंट हुआ हम लोग सब गए, सबसे पहले वहां से भागकर कौन आए? विजीत सर. क्यों? क्योंकि उनको अगला सेशन लेना था और उसमें डेमोन्स्ट्रेशन देना था.
बस ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो उसके लिए आपको भाग कर आना है। टाइम तो वही 40 मिनट है, आपको भाग कर आना है, आपको चीजें रेडी करनी है, कैसे दिखाना है। सी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द क्लास देयर शुड बी डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर्स। डेमोन्स्ट्रेशन हमको कराना है। एक्सपेरिमेंटेशन बाय द स्टूडेंट, आपने सब दिखा दिया सर और मैडम, और आपने बच्चों को हाथ से छूने नहीं दिया, तो आपका सारा डेमोन्स्ट्रेशन जीरो हो गया। क्योंकि वो तो बच्चे तो यही कहेंगे कि सर वो तो आपने किया था तो हो गया, मेरे से तो नहीं होता। तो उनको रियल एक्सपीरियंस करने दीजिए। एक्सपेरिमेंटेशन आपने जैसे जैसे दिखाया, बहुत सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपली show only one demonstration, only one activity in a time, and make them able that so that they can also perform the same experiment in the same way what you did. First time उनको वही करने को कहिए जो आपने किया था। Don't let them do anything else. उसके बाद जब वो एक बार कर चुके होंगे तब वो खुद से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि मैडम आपने तो वाटर लिया था, अगर मैंने ऑयल लिया तो, आपने स्ट्रॉ लिया अगर मैंने रॉड लिया तो, आपने तो ये मिरर यूज किया है अगर मैंने टॉर्च जलाया तो। दैट विल गो इन द सेल्फ एक्सप्लोरेशन पार्ट। ये इधर आएगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बाय द स्टूडेंट व्हिच प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पहली बार आप वही करवाइए, पहले तो आप दिखाइए, दूसरी बार वही करवाइए जो आपने किया है इन द सेम वे। वही वो कहानी है ना कि दो अंडे थे, दोनों अंडे में काफी दोस्ती थी, दोनों छत पे गया, दोनों वहां से कूदे, एक फूट गया दूसरा नहीं फूटा, दूसरा नहीं फूटा तो तीसरे से फिर दोस्ती हो गई। बोला मैं तो इतना तेज हूँ कि मैं छत से जंप लगाता तो नहीं फूटता, वैसा चलो लगाते हैं। इस बार दूसरा लगाया तो दूसरा ही फूट गया, फिर पहला तीसरा बच गया। तो उस तरह का काम मत करने दीजिएगा बच्चों को। पहली बार वही करने दीजिएगा जो आपने दिखाया है, क्योंकि उसने वाटर की जगह पे कोई एसिड ले लिया तो डेंजरस हो सकता है, वाटर की जगह पे कुछ और ले लिया तो डेंजरस हो सकता है। आपने उसको लिमिटेड फायर में दिखाया, उसमें आग लगा दी, कागज जमा कर आग लगा दिया तो डेंजरस हो जाएगा। सो द सेम वे इन विच यू परफॉर्म द एक्टिविटी, टेल देम टू डू दिस इन अ गाइडेड वे, इन अ कंट्रोल्ड मैनर। देन अब आप उनको कहिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आप सोचो कि इफ एनी कंडीशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट और एनी डेमोन्स्ट्रेशन, इफ एनी कंडीशन वी विल चेंज, व्हाट विल हैपन। थिंक, लेट देम थिंक। आप ये भी मत कहिए कि ये बदलने से क्या होगा, उनको खुद सोचने दीजिए कि अगर ये बदल दे तो क्या होगा, ये बदला जा सकता है कि नहीं। सो ये मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि विजित सर ने ऑलरेडी दिखा रखा है, सो आई विल नॉट टेक दैट मच टाइम। चलिए मैं आता हूँ सीधा एक्टिविटी पर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं हटा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। हम लोग सब ने क्लास 7 में हम लोगों को पढ़ाना होता है लेंसेस, मिरर्स। आई थिंक कि सभी ने, आप लोग सब ने देखा होगा ये लेंस, ठीक है। इसमें से छूने से हम लोग बच्चों को क्लास में बैठाए ले आइए 10-15 आपके क्लास लैब में से उठाकर, 1-2 टूटेंगे भी, डोंट वरी, दे दीजिए बच्चों के हाथ में कि छू कर देखो, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, सो लेट देम टच। छू कर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। मैडम देखा है आपने, छू कर देखिए क्या है। अगर छू कर देखते हैं देन दे विल बी एबल टू गेट द थिंग्स कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा। हम लोग सिंपली उन लोगों को बता देते हैं कि जो ऐसा होगा वो ये होगा, जो ऐसा होगा वो ये होगा, बस ऐसा वाला अलग, ऐसा वाला अलग, बस सिंपल सा फंडा। कुछ लेके क्लास में जाना नहीं है, बस गए और ऐसे करके बता दिए। लेकिन बच्चों को टच करके दिखाइए कि ये क्या है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्केव कैसा होता है। लेट देम टच देम। इसको छू के किसी को बहुत नुकसान नहीं होगा, और ये आप अपने क्लास में आराम से लेकर जा सकते हैं। एक दिन आपने अपने पर्स में भर लिया, हमने अपने पॉकेट में भर लिया, 4 दिन तक क्लास ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ले जा सकते हैं। बच्चों को दिखा दीजिए। दूसरा कंफ्यूजन देखिए बच्चों के दिमाग में क्या रहता है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, दे नेवर हैव सीन द इन्वर्टेड इमेज, बस वो लोग रटते ही हैं कि उल्टा होता है। नहीं बताया ना, स्कूल में हम लोग देखते हैं तो नहीं बटन। लेकिन अभी मैम हम कल हमारा एक टॉपिक है कंसेप्ट एंड मिसकंसेप्शन, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि स्कूल वाला सही क्यों नहीं है, ठीक है।
क्यों नहीं स्पून वाला सही है? ये हम लोग इन्वर्टेड इमेज बच्चों को पढ़ाते तो हैं, दिखाते नहीं। आज हम लोग देखते हैं इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग तुरंत से देख लेंगे कि इन्वर्टेड इमेज होता क्या है। इसमें ही देख लेंगे हम, क्या दिक्कत है? ये तो सब देख पा रहे हैं। इट इज द लेंस स्टैंड, मिरर स्टैंड। ये हमारे हाथ में दो लेंसेज हैं, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। टच करके आप देख सकते हैं। इट इज सिंपली कैंडल एंड माचिस, नथिंग एल्स। अभी दिखाते हैं, इसलिए मैम ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव हम लोग सिखाएंगे तो वो हाई लेवल हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास 7 को, है ना? तो क्लास 7 के स्टैंडर्ड से पढ़ाएं। उसका वो छोटा, अच्छा दिख जाएगा, कोई बात नहीं। कॉपी दीजिए, इसको कट कर देंगे। देखिए मैम, ये इन्वर्टेड इमेज देखिए कितना क्लियर दिखेगा। सी, सारे लोग देख सकते हैं, वेरी क्लियर इट इज इन्वर्टेड इमेज। ये देखिए, तो देखते रहिए, देखते रहिए, इसको देखते रहिए। सी, इन्वर्टेड इमेज, इट इज एट द इंफिनिटी, so the image is there at the focus। FCI मैंने पिछले वर्कशॉप में बताया था आपको, देख लीजिए उल्टा फ्लेम। अब बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। कहेंगे मैडम और करके दिखाइए। अच्छा, इसको नजदीक करेंगे सर तो क्या होगा? तो आप बताइए कि इसको नजदीक करेंगे तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? ये इंफिनिटी पे बनेगा, which we cannot see। ठीक है, फिर हम लोग इधर इसको लाते हैं। ये अगर हम लोग इंफिनिटी पर करते हैं तो फोकस पर इमेज देखिए बन रहा है। बनेगा ये देखो, मोमबत्ती तक दिख रही है, देखिए। और बेस चौड़ा होना चाहिए ना, चौड़ा बेस देखिए ऊपर कैंडल का फ्रेम भी दिख रहा है मैम, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो दिस इज द इन्वर्टेड इमेज, देख सकते हैं हम लोग। एकदम पास में रखेंगे तो नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वो बड़ा इस पर ऑप्शन नहीं होगा, आएगा नहीं। बनेगा बनेगा लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज हम लोग नहीं। अब देखिए, अब जैसे हम लोग, ओके प्लीज टेक योर सीट। जैसे हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, अगेन देयर इज अ डिफरेंस। सिंपल सा डिफरेंस हम लोग क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट। दिखाया कि बच्चों को रियल इमेज पर लिया जा सकता है। क्या होगा स्क्रीन? What is the screen in the real image? क्या होगा? See, it is the convex lens and it is the property of the convex lens to make real images, है ना? So let us see, is the image forming or not? देखिए यहाँ बन रहा है। ये वाला जो लाइट है, ट्यूब लाइट, इसका देखिए रियल इमेज। See the real image। बच्चों को दिखाइए और ये देख लीजिए, ये convex, ये concave lens है। It is produced, it always produces the virtual image। You cannot take it on the paper। See, I am using from here। देख लीजिए, नहीं बनेगा। See this, नहीं बने, किसी एंगल पे नहीं बनेगा। और इससे बहुत सिंपल है, देखिए बन गया। बाहर अभी अगर खिड़की खुले तो मैं खिड़की को उल्टा इसमें दिखा सकता हूँ, एकदम आसान से दिख जाएगा। That is what I have taken। एक तो मैंने आपको दिखाया इन्वर्टेड इमेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू मिरर। मैं वही मिरर भी है, उस पे भी लग सकता है, लेंस पे भी। I am a man of biology। No, not expert। I cannot say expert, but know something in physics also, which the physics classes can be made interested।
ये अब मिरर है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं, और ये रिफ्लेक्शन इधर ही होगा, है ना? तो तब ये देखिए इस साइड आ जाएगी, ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और ये दिखाने के लिए मेरा कुछ खर्चा नहीं होना, क्लास में आराम से दिखाया जा सकता है। मैं पिछले 4-5 दिनों से सारे क्लासेस में दिखा रहा हूँ, और सारे क्लास के बच्चे सर आप फिजिक्स ही पढ़ा लीजिए, है ना? ये देखिए, इससे आप एंगल आई और एंगल आर का रिलेशन भी समझा सकते हैं। आई एम चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो चेंजेस। एंगल में बदल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का एंगल भी बदल रहा है। देखिए, मैं एक ऐसा पॉइंट होगा वेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैं रखूंगा तो कॉपी और इमेज ऑलमोस्ट पास ही होगा। ये देखिए है, इन चीजों से आप प्लेसमेंट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज यू कैन टीच वेरी नाइसली, दिखाया जा सकता है इससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then next one, atmospheric pressure। देखिए, atmospheric pressure के लिए भी हमारे पास इतना सिंपल सा फंडा है। आज तक हम लोग बच्चों को बताते हैं, बस बच्चों को किस तरह से बताना है ये सब जानते हैं। इट्स वेरी सिंपल और सभी लोगों ने यूज भी किया है। बट हाउ टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कैसे बताना है कि उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो बच्चों को कहिए कि बच्चे तुम लोगों ने बलून फुलाया है, डेफिनेटली दे विल टेल यस सर, यस मैम। कैसे फुलाया है? तो कहेंगे सर फूंक कर। कहिए इस बार हवा फूंक कर मत फुला, हवा चूस कर फुलाओ। हाउ इंटरेस्टिंग इट विल बी। इस बार हवा भरना नहीं है बैलून में, हवा चूसनी है और बैलून खुल जाएगा। और क्या करिए, उसके पहले इस बॉटल में एक होल करा हुआ है, देखिए यहाँ पर है एक होल करा हुआ, और इस होल से आप सब करिए। ये इस बॉटल पर पॉसिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक बॉटल लीजिएगा, तो माजा वाला बॉटल होगा तो हो जाएगा, क्योंकि वो बॉटल नहीं श्रिंक नहीं होगा। अगर मैं इससे अभी खींचूं तो ये बॉटल ही श्रिंक हो जा रहा है, थोड़ा सा फूल रहा है, देखिए। बॉटल से हवा जब खींचेंगे ना तो बैलून खुलता चला जाएगा। देखिए फूल रहा था। और फिर दूसरा उपाय, फिर दूसरा तरीका, इसी से दूसरा समझाया जा सकता है। बैलून का मुंह छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत तो बैलून उड़ जाता है। ये तो उड़ा नहीं, खुला हुआ है, फिर भी नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये होल है। ये मैं आप टीचर्स को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये होल है। बच्चों को होल दिखाइएगा नहीं, बाद में दिखाइएगा जब उनका इंटरेस्ट एकदम चरम पर हो तब, ठीक है? और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसको होल करके रखना है और मंत्र पढ़ना है, ठीक है? स्वाहा, और छोड़ देना है। ये बॉटल से फूट जाएगा, बैलून से फूट जाएगा। ये वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा सकते हैं। कहिए बच्चों की जब बारी आए, then put your finger on that hole, tell them to inflate the balloon। कहिए उनको फूको, कोई कितना भी दम लगाएगा नहीं फूलेगा। उसमें से 1-2 बच्चों के टाइम छोड़ दीजिए, अरे ये तो जादू है, हम लोग तो बहुत फूके तो नहीं फूला, इसने तो फूक दिया तो फूल गया। तो कुछ बच्चों को करने दीजिए, ऐसा नहीं कि अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए किसी का फूले ही नहीं, बस टीचर ही फुलाए, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो कहेंगे बच्चे कि सर आपके पास तो जादू है। वैसे नहीं, बच्चों को कहिए किसी 2-3 को करिए, देखो जी फूको जी इसको, तुमसे तो नहीं फुला रही, ये थोड़ा मोटा ताजा दिख रहा है, इसको फुकवाते हैं, फुकवाइए, हटा दीजिए, फूल जाएगा। अब देखिए सर इसने कितना दम लगाया है ना। और फिर उसको होल्ड करके रखिए, बैलून का मुंह छोड़ते ही बैलून उड़ने लगता है, बस इसको छोड़ के भी रखें लेकिन ये नहीं सिकुड़ेगा। अब उनको ये कंसेप्ट दीजिए कि कोई बच्चा जो इसको नहीं फुला पाया, व्हाई? बिकॉज द टीचर पुट हिज और हर फिंगर ऑन द होल थ्रू विच द एयर कैनॉट कम आउट, एंड इफ द एयर कुड नॉट कम आउट यू कैनॉट पुश मोर एयर इन दैट बॉटल। If I left the hole, if I removed my finger from the hole and then I am trying to inflate it, it will be inflated. Why? Because the portion what it will cover inside the balloon, that much air will come out of that hole. बहुत सिंपल से तरीके से समझा सकते हैं आप उसको। अभी हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन हुआ था 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे में,
उसमें एक बच्ची ने एसडीएम साहब को दिखा दिया जादू। बोला सर देखिए, आपने तो सर बलून फुलाया होगा, अब आप फूक कर अब आपको बलून चूस कर फूल कर दिखाते हैं। खींचा, एसडीएम सर एकदम अचंभित हो गए, अरे ये कैसे? सर इतना ही नहीं, देखिए आप, मैंने छोड़ दिया, ये नहीं सिकुड़ रहा। बोला तब क्या कर रहा हूँ? जादू से देखिए सर, मंत्र अभी मैं पढ़ती हूँ, एकदम वेरी स्माइली फेस शी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल द थिंग्स। बहुत स्माइली तरीके से उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। वो हमारे पास वीडियो भी बहुत अच्छा आया था सभी के पास। बस उसने ऐसे किया, एक मंत्र पढ़ा, स्वाहा, छोड़ दिया, तुरंत बलून सिकुड़ गया। ये हो सकता है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था, बट एज पर जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं, हम लोग कभी दिखाते नहीं है क्लास में, बट यहाँ वर्कशॉप की चीजें वर्कशॉप में ही रहती है। वेरी सिंपल इट इज, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। सी उठाइए सर उसको, ये देखिए बिना पुश किए हुए पानी बाहर आ रहा है, ये देखिए प्रेशर आ रहा है उसमें, गैस। ये मैंने बंद किया, बंद। एक्चुअली इसी कंसेप्ट पर हमारा सेंसर वाला नल काम करता है, जो आजकल होटल्स में लगा होता है। जैसे हम लोग हाथ ले जाते हैं, वो एयर का प्रेशर सेंस कर लेता है और उसी हिसाब से ये काम होता है। हो जाएगा। अब क्या हुआ? Which principle is there? The pressure of air और atmospheric pressure simply। क्या किया मैंने? इस बलून को फुलाया और उसके बाद इसको इसके मुंह पर लगाया, and there is no way to come out of that air। इसके लिए कोई जगह ही नहीं था हवा को बाहर आने का। मैंने हवा को छोड़ा है यहाँ। अब ये होकर निकलने वाला रास्ता जिधर से है वो इस पाइप से होकर है, and the straw is under the water, so the water is coming out to balance that pressure of air। नहीं, हैंड पंप में ये नहीं है मैम। हैंड पंप वैक्यूम करके करता है, देखिए एयर चला जाता है तो उसको ठीक करना पड़ता है फिर से। Now see, this I made just दीपक सिन्हा सर, ये मैंने कल ही बनाया है, देखा होगा आपने। टैपिंग ऑफ, ठीक है। It is what आप पढ़ाते हैं बच्चों को propagation of sound, right? और हम लोग पढ़ाते हैं कि sound requires a medium to travel, but we never show which medium। कभी नहीं दिखाते हैं, बस हम लोग बोल देते हैं और बच्चे सुन लेते हैं, है ना? चलिए मैं अपने ब्रांच वाले से करवाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि फेवर कर दिए होंगे। नहीं यहाँ सर को कराते हैं। सर इसको पकड़िए, कान में लगाइए, बस सर इसी को पकड़िएगा, कहीं पाइप में टच ना हो, ठीक है? पाइप को टच नहीं। And sir, please cooperate me and listen the instruction and accordingly you need to do this। मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा सर। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जब आपको आवाज सुनाई पड़े तो आप अपने दूसरे हाथ को उठाएंगे, so that all can guess कि आपको आवाज सुनाई पड़ गई। ठीक है सर? ठीक है? अभी नहीं, जब मैं बोलूं, जब मैं आवाज आपको सुनाऊंगा तब। डन? ये देखिए, आंख बंद करिए सर आप। देखिए मैं अपने हेड को खटखट आवाज दे रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। ठीक है? आप लोग भी केवल देखें। और मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ पाइप। सर अभी नहीं, जब सुनाई पड़ेगा तब। नो रिस्पॉन्स, नहीं सुनाई पड़ा ना? सर आंख बंद रखिए ना, तब मजा आएगा। ऐसे तो मुझे देख रही हूँ। सी सुनाई पड़ रहा है सब? What is there? क्या था इसके पीछे का लॉजिक? Propagation of sound through the What medium? What medium is that? Propagation of sound through the एयर तो होता तो यहाँ से क्यों नहीं आवाज आया? That is also air। propagation of sound through bones। propagation of sound through bones। ये मैंने देखिए, मैंने यहाँ टच किया लेकिन मेरे बॉडी से ये पाइप कनेक्टेड नहीं था कहीं, और मैंने इसको इस कदर पकड़ रखा था, सर को कुछ नहीं सुनाई पड़ा। फिर क्या हुआ दूसरे केस में? मैंने इस पाइप को दबाया यहाँ विदाउट टच, और मैंने ये एकदम झूलता हुआ रखा था एयर में। अगेन आई
did the same. अब ये जो मैंने यहाँ टच किया, ये वाइब्रेशन यहाँ से मेरे बोन्स में आया, जॉ में, जॉ में, and the teeth are attached to this, right? And I will take the pipe बगैर लिप्स के, ठीक है? और ये मैंने होल्ड किया और वो वाइब्रेशन इसके जरिए कलेक्ट होकर चला गया सर के कान पर. सेम थिंग दैट इज डन इन द स्टेथोस्कोप ऑफ द डॉक्टर्स. यही होता है. सेम थिंग वी डिड आल्सो. आप लोग बच्चों से पूछता हूं कि तुम लोगों में से कितने बच्चों ने टेलीफोन बनाया था बचपन में? कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं. और हम लोग तो माचिस का पूरा मतलब वो घर पे माचिस का बंटादार कर देते थे, तीलियां खाली कर. हाँ, तीलियां खाली कर करके उसमें धागे जोड़कर जब भरते रहते थे. तो दिस इज व्हाट, कुछ नहीं है. ये मैंने केमिस्ट्री लैब से पनेल लिया है. ये पनेल है जो मैंने केमिस्ट्री लैब से लिया है. देखिए, ठीक है, ये फिक्स हो गया. और ये पाइप बच्चे ने एग्जीबिशन में लगाया था अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, वो मैंने निकाल लिया क्योंकि एग्जीबिशन हो गया था. सो सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस I can teach the propagation of sound through the bones. बहुत सिंपल. एक और भी फंडा है, आप कर सकते हैं. Propagation of sound through the threads. Take two. नहीं माचिस वाला तो बच्चे करेंगे या नहीं भी करेंगे. इंटरेस्टिंग सा चीज, 2 स्पून लीजिए and tie these 2 spoons with the help of thread. और उस थ्रेड को आप हेडफोन जैसा अपने यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से कि वो दोनों स्पून एकदम फ्रीली सस्पेंडेड रहे. एंड देन उन दोनों स्पून को 2 बार टच करा दीजिए. आपने तो स्पून टच कराया है, स्पून की आवाज तो खटखट होनी चाहिए, होता भी है, लेकिन वो खटखट आपको एकदम मंदिर की घंटी जैसा सुनाई पड़ेगा. कान में एकदम मंदिर की घंटी बजेगी. ऐसे हम लोग बोध गया में देखते हैं जो वो बड़ा सा कटोरा बिकता है जिसमें ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, साउंड जो होता है. नहीं, एक साउंड होता है. बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे बहुत बिजी रहते हैं. ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. सीधा मैजिक. विजीत सर ने कहा कि आपने स्वेटर पहना है तो वुलन क्लॉथ से रगड़िए, अपना स्वेटर खराब नहीं करना. ऐसे मेरा स्वेटर बहुत कीमती नहीं है, लेकिन ये देखिए मैंने ये बैग लिया है. सी, क्या हुआ है. ये सब एक्सपेरिमेंट से आप आराम से दिखा सकते हैं. एक को मैंने रब किया और दूसरा चल रहा है जिसको रब नहीं किया है. वही सर ने दिखाया, लाइट चार्जेस रिपेल, आई एम शोइंग यू अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट. ठीक है, देखिए नहीं गिरेगा. ये दीवार पर तो और अच्छे से चिपक जा रहा है, यहाँ भी चिपक जाएगा. देखिए रबिंग जितना अच्छा होगा ये चिपक जाएगा. सी होगा. ओके, हाँ ये भी होता है. इसको बंद कर दिए. नाउ सी, टाइम हो गया. अच्छा बस अब लास्ट आप लोग को गुलाब देकर विदा करें, तो भी आपको याद रखिए. आपके पास जो A4 पेपर है, सब मैं बीचा में सीजर जल्दी. A4 पेपर जो है उसका किनारा आप रब कर लीजिए. एक कहीं एक किनारे पर ये गुलाब रोज पेपर रब कर लीजिए. आपको इंडिकेटर पेपर पर मैंने समझाया रेड कैबेज से, मैं बता रहा हूँ रोज पेपर से. बस नो डिफरेंस. काट लीजिए, काट लीजिए, बेहतर है. एक बहुत पतला सा स्ट्रिप काटिए और उसमें इसको रब कर लीजिए. पेपर का स्ट्रिप काट लीजिए सर. एक पतला सा पेपर स्ट्रिप काटिए और उस पर इसको रब कर लीजिए. काट लीजिए, काट लीजिए. हाँ हो जाएगा. हाँ, रब करके उसको इंडिकेटर पेपर में डाल दीजिए. इसमें
कल का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। प्रथम तो 20 हो अच्छा, वो लिटमस पेपर बनाकर आप लोग रख लीजिए, कल टेस्ट करिए, कल टेस्ट करिएगा। वेट फॉर फ्यू मोर अभी मिनट, फाइट करने के लिए कल इससे काम करेंगे। इसको रख लीजिए, कल हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही साफ समय लेंगे बस। देखिए कन्वेक्शन इन वाटर। सी, हम लोग बच्चों को दिखाते तो हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर की तरफ आते हैं, बट दिखा नहीं पाते बच्चों को, पढ़ाते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बॉइल्ड वाटर लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये ठंडा पानी। ऑब्जर्व, देखिए क्या होता है। See the hot water rising up, हो रहा है ये कन्वेक्शन इन द वाटर। हॉट वाटर का हिसाब ये हम लोग पढ़े हैं। हम लोग बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं कि कैसे पानी गर्म होता है, उससे बाद में पहुंच गया क्योंकि ये बर्तन थोड़ा छोटा था, पानी थोड़ा कम गर्म था, नहीं तो एकदम जस्ट लाइक वो क्या कहते हैं, वोल्केनो टाइप दिखता है, एकदम ऊपर जाता झटके से। Okay, so thank you all for participation and cooperation.